خبر جہاں 2 شہری اغوا مزید اغوا ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 3 روز میں 4 افراد لاپتہ ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے کشمور تھانے کے حدود RD 45 سے 2 شہری محمد عیسیٰ نائچ اور محمد فیضان نائچ کو اغوا کیا۔ محمد عیسیٰ کی عمر 29 سال اور فیضان کی عمر 15 سال بتائی جاتی ہے۔ ڈاکو واردات کے بعد مغویوں کو لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس تاحال خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ 3 روز میں اغوا برائے تاوان کی یہ تیسری واردات ہے۔ شہریوں کو تحفظ دینا پولیس کے لیے چیلنج بن گیا ہے۔ عوام میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ پولیس مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ شہر میں ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں۔ میرپور ماتھلو میں ڈپٹی کمشنر گھوٹ کی ڈاکٹر سید محمد علی زیدی کی زیر صدارت جشن آزادی منانے کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ضلع گھوٹکی میں جشن آزادی کا دن جوش و خروش سے منایا جائے۔ تمام شہروں میں رنگ رنگ تقریبات منعقد کی جائیں گی، ہزاروں درخت لگائے جائیں گے اور سرکاری عمارتوں کو سجایا جائے گا۔ میرپور ماتھلو میں منعقدہ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر گھوٹ کی ڈاکٹر سید محمد علی زیدی نے کہا کہ حکومت پاکستان اور حکومت سندھ کی ہدایت کے مطابق اس سال 1 اگست سے 14 اگست تک جشن آزادی کی خوشیاں منائی جائیں گی، کیونکہ پاکستان نے اپنی ایمانی قوت کے ساتھ ایک بڑے طاقتور دشمن کو شکست دے کر تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس خوشی کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے تمام اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں 14 روزہ پروگرام ترتیب دیے جائیں گے، عمارتوں کو سجایا جائے گا، جبکہ سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں تقریبات منعقد کی جائیں گی تاکہ نوجوان نسل میں شعور بیدار ہو۔ ڈپٹی کمشنر گھوٹکی نے اسسٹنٹ کمشنر کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی اپنی تحصیلوں کے پروگرامز کی نگرانی کریں اور شہداء کی قبروں پر پھولوں کی چادر چڑھائیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ تمام اداروں کے افسران کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے محکمے کی سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم لہرائیں، تعلیمی اداروں، اسپتالوں اور سڑکوں کے اطراف شجرکاری کی جائے۔ فیصل آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ مین شاہراہوں اور بازاروں میں ایک بار پھر تجاوزات قائم ہو چکی ہیں۔ اسی حوالے سے پوچھتے ہیں اپنے نمائندے سلمان سامی سے۔ فیصل آباد شہر میں تجاوزات کا دن ایک بار پھر بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے سخت سے سخت احکامات جاری کیے گئے، لیکن میونسپل کارپوریشن نے ان احکامات کو ہوا میں اڑا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق میونسپل کارپوریشن کے افسران و اہلکار کی ملی بھگت اور مبینہ کرپشن کی وجہ سے یہ تجاوزات دوبارہ شہر میں قائم ہو رہی ہیں۔ مین شاہراہوں، گلیوں اور بازاروں میں لگنے والی ریڑیاں اور بننے والی غیر تعمیرات کی وجہ سے یہ تجاوزات دوبارہ بن رہی ہیں۔ اس وقت ایک شہری میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، شہر میں دوبارہ تجاوزات قائم ہو رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلے وزیر اعلیٰ صاحب نے جو اقدامات کیے یہ تجاوزات کے خلاف، یہ بہت بہترین تھے، بہت اچھے تھے، رستے میں آنے جانے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر سے یہ دوبارہ جو ہے نا لوگ تجاوزات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو نا لگتا ہے کہ بظاہر یہی شو ہوتا ہے کہ نا یہ جو ہے یہی شو ہو رہا ہے، جو نا یہ میونسپل کارپوریشن والے ہیں یہی نہیں چاہ رہے۔ یہ میرے خیال سے جو ہے نا وزیر اعلیٰ صاحب کو نا مریم نواز صاحبہ کو نا ایکشن لینا چاہیے ان کے اگینسٹ، جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اگینسٹ، یہ جو ناجائز تجاوزات ہیں ان کے خلاف۔ ہاں جی بالکل، تجاوزات دوبارہ قائم ہونے کی وجہ سے شہری بھی شدید غم و غصے کا اظہار کریں، اور شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ ہے کہ ان افسران کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور شہر کو دوبارہ تجاوزات سے پاک کیا جائے۔ جی بلیٹن کی جانب بڑھتے ہوئے ضلع کشمور کا رخ کریں، جہاں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کی مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں SSP کشمور محمد مراد گامپور کی ہدایت پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چوری شدہ ٹریکٹر ٹرالی کو برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا ہے۔ ٹریکٹر ٹرالی کی رپورٹ متعلقہ تھانے میں درج تھی، جبکہ پولیس ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت کا استعمال کرتے ہوئے مذکورہ چوری شدہ گاڑی کو ریکور کر کے متاثرہ شہری سیف الدین سومرو کے حوالے کیا۔ اس موقع پر SSP کشمور نے انچارج شبیر آباد اعجاز کھوسو اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ضلع کشمور میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے۔ کشمور پولیس کی یہ بروقت کارروائی نہ صرف عوام کے اعتماد کی بحالی کا ذریعہ بھی ہے، بلکہ جرائم پیشہ عناصر کے لیے واضح پیغام بھی ہے کہ قانون کی گرفت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔
पाक पतन में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए सरगना समेत मोटरसाइकिल चोर गैंग पकड़ लिया है। सीसीडी पुलिस ने चोर गैंग के सरगना इरफान उर्फ फानी समेत दीगर अफराद को भी धर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत के चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिमान लाहौर समेत दीगर अजला में वारदातें करते थे। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश मजीद चोरियों का भी एतराफ कर लिया है। गैंग का 19 से जायद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। और मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत में कसूर पार्क में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया जाने वाला स्पोर्ट्स जिम्नाजियम तहाल फाल न हो सका। कई साल कबल तामीर मुकम्मल होने के बावजूद ये मनसूबा इंतजामी गफलत और अदम दिलचस्पी की नज़र हो गया है। मनसूबे का मकसद नौजवानों को सेहत और इस हवाले से सरगर्मियों की सहूलियात देना था। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर गार्डन में और मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है कसूर का जो है स्पोर्ट्स जिम्नेजियम, जो आज से 2007 में पंजाब हुकूमत की जानब जो स्कीम शुरू की गई थी, जिसमें जो है 20 के करीब जो है पंजाब भर में जिम्नेजियम तैयार होने थे, लेकिन 2012 में तकरीबन 19 जिम्नेजियम जो है वो जो कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन कसूर का जिम्नेजियम आज भी ताहाल वैसा ही है। इस वक्त भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर बच्चों के लिए इंडोर जो स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ शुरू होनी थी, लेकिन यहाँ पर नशइयों ने अपने डेरे जमा रखे हैं। और इसकी मेन वजह यही है कि पंजाब हुकूमत के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में बनने वाला ये जो स्पोर्ट्स जिम्नेजियम है, आज भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन ये पंजाब हुकूमत की तरफ दे रहा है। इसकी मेन वजह यही है कि इसका जो महकमा बिल्डिंग और जो ठेकेदार है उसके आपस के जो माबीन चपकलश है, उसकी वजह से ये उसकी नज़र में हो चुका है। हमारे साथ एक स्टूडेंट भी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स काफ़ी देर से बंद? सर ये काफ़ी देर से बंद है। हमें नज़र तो आ रहा है कि ये वीरान हो चुका है और इसमें नशइयों के अड्डे बन चुके हैं। बेसिकली तो ये बनाया गया था यूथ के लिए कि यहाँ पर यूथ आकर अपनी इंडोर सरगर्मियाँ शुरू कर सकें, लेकिन ये पंजाब हुकूमत के दौर में बना था और अभी तक नामुकम्मल है। और हमें हमारी जो वज़ीर आला पंजाब से यही दरख्वास्त है कि अगर इसको शुरू किया गया तो इसको मुकम्मल भी करें, ठीक है। और क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए लग चुके हैं और अगर वो इसको मुकम्मल नहीं करते तो ये सारे करोड़ों रुपए ये ज़ाया है। जी जैसे आपने स्टूडेंट्स की बात सुनी, उनका यही कहना है कि नशइयों के डेरे यहाँ पर बन चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में बनने वाला पंजाब हुकूमत का ये प्रोजेक्ट आज भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, ये पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला मरियम नवाज से नौजवान जो है ना वो अपील कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस स्पोर्ट्स जिम्नेजियम को जो है ना वो बहाल किया जाए। जी सियालकोट के हेड मराला बैराज पर दरियाए चनाब में पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। ताज़ा तरीन दस्तियाब अदद-ओ-शुमार के मुताबिक इस दोपहर 3 बजे पानी की आमद 1,16,650 क्यूसिक तक पहुँच गई है, जबकि दरियाए चनाब में बहाव 1,855 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। उधर डाउन स्ट्रीम में खराज क्यूसिक 93,200 तक जा पहुँचा है, जो कि निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल को जाहिर करता है। महकमा आबाशी और ज़िला इंतजामिया की टीमें सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। नशेबी इलाकों के रिहायशी को मोहतात रहने का मुमकिन इनखला के लिए तैयार रहने की भी हिदायत जारी कर दी गई है। सियालकोट की तहसील डस्का कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन सैयद नवीद हैदर शराजी ने तहसील डस्का का तफसीली दौरा किया है। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे की रफ्तार और मयार का जायजा लिया गया। कमिश्नर ने तंबी की जारी की है कि तरक्याती मनसूबों में गफलत या कोताही बरतने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर नवीद हैदर शराजी ने वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत शहर में सफाई की सूरत हाल का भी तफसीली जायजा लिया है। उन्होंने सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजर और मकामी अफसरान को हिदायत की है कि मानसून के दौरान सफाई और निकासी आपके निज़ाम को फ़ाल रखने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी के शोबा सैनिटेशन के साथ मुकम्मल ताउन यकीनी बनाया जाएगा। कमिश्नर ने हुकाम को हिदायत की है कि शहर में टूटे हुए मेन होल्स और कवर्स को फौरी तौर पर मुरम्मत किया जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। उन्होंने नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग स्टेशन और मशीनों के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली ने कौमी असम्बली सैयदा नौशीन इफ्तिखार, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल संघेड़ा, असिस्टेंट कमिश्नर डस्का सादिया जाफर, म्यूनिसिपल कमेटी डस्का और SWMC के मुकामी अफसरान ने भी कमिश्नर के हमरा मौजूद थे।
रेनाला खुर्द के नवाही गांव में पंजाब फूड अथॉरिटी ने अचार बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई करके डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ 2 की निगरानी में फूड सेफ्टी टीमों के हमरा की जाने वाली कार्रवाई के हवाले से फैक्ट्री से 1800 से किलो नाकिस और मुज़र सेहत अचार बरामद कर लिया और उसको तल्फ कर दिया गया है। फैक्ट्री में नाकिस सफाई, गंदगी, जबकि ब्रिल्स और गैर मयारी मसाला जात का इस्तेमाल किया जा रहा था। फैक्ट्री में मालिक को 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। फूड अथॉरिटी का कहना है कि नाकिस और मुज़र सेहत अशिया की तैयारी या फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी रहेंगी। शहर औलिया मुल्तान के इलाके अशरफाबाद में वासा हुकाम की नाअहली गुज़श्ता 10 माह से 15 साल के सेवरेज लाइन ख़राब होने से गटर का पानी गली में फैला हुआ है, जिसके बायस इलाका मकीनों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर किया गया। इलाका मकीनों का कहना था कि बाकायदगी से बिल अदा करते हैं, मगर फिर भी वासा हुकाम ने अभी तक हमारे मसले का तदारक नहीं किया। मज़ीद तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे मकसूद आलम से तफसीलात जानते हैं। जी, हम मौजूद हैं मुल्तान के इलाका अशरफाबाद में। यहाँ पर इलाका मकीन नहायत ही परेशान है, जिसका सबब यहाँ पर गटर का पानी और कचरा गली में जगह जगह पर खड़ा है और ताफुन ज़दा माहौल में ये लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अहलियान इलाका सरापा एहतिजाज है कि इसको अरसा 15 साल हो गए हैं और आज तक किसी अमले ने इसको सफाई करने के लिए ना आया है, ना यहाँ पर कोई सफाई का निज़ाम है। अहलियान इलाका है, मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये मामला कितने अरसे से चल रहे हैं और इसको हल अभी तक क्यों ना किया गया है। जी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहलियान इलाका यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग 20 साल से जो है वो इसमें परेशानी को जो है झेल रहे हैं। इवन कि यहाँ से आना जाना लोगों का बंद हो चुका है और बच्चे गिर रहे हैं, मोटरसाइकिलें गिर रही हैं, मस्जिद के नमाजी जो हैं वो नहीं जा पा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी हमारे इस मसले को हल किया जाए। तो काम बाला से 10 मरतबा बल्कि 100 मरतबा रिक्वेस्ट कर चुके हैं। वो आर्जी तौर पर खुलता है, 24 घंटे बाद फिर दोबारा ब्लॉक हो जाता है। तो इसका कोई प्रॉपर हल हमें दिया जाए। जी, आपने सुना, इलाका मकीन का कहना है, हुकाम बाला से भी अपील करते हैं कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए और अहलियान इलाका की इस ताफुन ज़दा माहौल से जान छुड़वाई जाए। जी। हाफिजाबाद पंजाब फूड अथॉरिटी की चेकिंग मुहिम ने गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। तर्जुमान के मुताबिक महदूद वसाइल के बावजूद चेकिंग और जुर्मानों में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 162% ज़्यादा है। हाफिजाबाद में DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर रवा साल 11,072 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई है, जिसके दौरान 843 पॉइंट्स को 76,61,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। ये शरह गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में 162% ज़्यादा है। जालसाजी पर 7 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि 125% इजाफे के साथ 28 यूनिट सील किए गए हैं। ज़िला भर में नाकाबंदी करके दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग में 400% इजाफा किया गया। इसी दौरान 3,524 लीटर नाकिस दूध को तल्फ भी कर दिया गया है। फूड अथॉरिटी के मुताबिक चेकिंग के बावजूद तल्फ शुदा दूध की शरह में 48% कमी आई है, जो मयार में बेहतरी का सबूत है। चेकिंग के दौरान 2,580 किलो गंदा पानी, 149 लीटर नाकिस ऑयल और 370 किलो मुज़र सेहत गोश्त भी तल्फ कर दिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक खुराक में मिलावट या जालसाजी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी हैं। खुराक की हिफाजत हम सब की कौमी फरीज़ा है। और अब रुख करते हैं गुजरांवाला का, जहां मुख्तलिफ बाजारों में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ताजिरों ने वापडा के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह चौधरी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरांवाला के रेल बाजार कपूरा वाली गली में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज जो है ताजर सरापा एहतजाज हैं और बिल्कुल इस गली में इतनी ज़्यादा तारों का झुरमट है और बिल्कुल आए रोज़ शॉर्ट सर्किट होता है। और इसके अलावा यहाँ पर रोज़ाना बिजली जो है उसकी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है। इसी वाले से यहाँ पर ताजर आज सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद।
माथिलों में सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत सिंध जाम इकराम उल्लाह धारिजो ने अपने हल्का इंतखाबात के अवाम और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान इलाके के सियासी, समाजी और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई है, जबकि वज़ीर ने आने वालों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए अहकामात भी जारी किए। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत सिंध जाम इकराम उल्लाह धारिजो ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरा मकसद आवाम की खिदमत करना है। आपको जो भी मसाइल हों मरहलावार तमाम मसाइल हल करेंगे। हुकूमत सिंध ने रिकॉर्ड तोड़ तरक्याती काम करवाए हैं। मुखालिफीन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालिफत में तनकीद बराए तनकीद की पॉलिसी इख्तियार कर रखी है, जबकि आवाम हुकूमत पर भरोसा रखें, हम आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। सूबाई वज़ीर जाम इकराम उल्लाह धारिजो ने मुलाकात के लिए आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन को यकीन दिलाया कि हुकूमत सिंध उनके मसाइल के हल के लिए कोशा है। और गुजरांवाला के मुख्तलिफ बाज़ारों में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ताजरों ने वापडा के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ हाजी ज़फ़रुल्लाह। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरांवाला के रेल बाजार कपूरा वाली गली में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज जो है ताजर सरापा एहतजाज हैं और बिल्कुल इस गली में इतनी ज़्यादा तारों का झुरमट है और बिल्कुल आए रोज़ शॉर्ट सर्किट होता है और इसके अलावा यहाँ पर रोज़ाना बिजली जो है उसकी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है, इसी वाले से यहाँ पर ताजर आज सरापा एहतजाज हैं। और इस गली के जो सदर हैं यहाँ पर कपूरा वाली गली के, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर। सर आप बताएं कि आपको किन मसाइल का सामना है? सर मुझे बहुत बड़ा मसाइल है। मैं एसी सिटी गुजरांवाला दी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਹੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਫੁੱਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਪਈ, ਇਸ ਸ਼ਾਰਟ ਪੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਪੈਰ ਹੋ ਜਲਾਈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਪੁਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਦੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ से दरख्वास्त करना अपने वजीर आला पंजाब से, थोड़ी मेहरबानी मरीम नवाज साहब ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਗਲੀ ਕਪੂਲੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਆਪਣੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਓ, क्योंकि ਸਾਨੂੰ एसडीओ साहब जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने बाजार के सदर की बात सुनी। उनका कहना है कि बिल्कुल हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और काफ़ी करंट भी यहाँ पर ताजरों को लग चुका है। और यहाँ पर जो पोल हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रखे हैं वो भी यहाँ पर नकारा हो चुका है, किसी वक्त भी बड़े हादसे का वो सबब बन सकते हैं। मुतअद्दिद बार वापडा को तलाक किया, मतलब उनको जाकर रिक्वेस्ट किया, लेकिन इसके बावजूद हमारा यहाँ पर काम नहीं करवाया जाएगा। और बिल्कुल ये वापडा वाले भी किसी बड़े हादसे के मुंतज़र हैं कि यहाँ पर बड़ा हादसा हो, जानी नुकसान हो और उसके बाद ही इस पर जो चीज़ें हैं वो तारें और इसके अलावा पोल जो हैं वो लगवाए जाएँ और फिर ये इस पर अमल दरामद होगा। जी मुजफ्फर कॉलोनी अहमदपुर शर्किया में दिल खराश वाक़या पेश आया है, जहां खामन ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी 35 साला साबरा बीबी की गर्दन तेज़ धार आले से 3 तन से जुदा कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकसूद अभी कुछ अरसा कबल कत्ल के मुकदमे से जेल से रिहा होकर आया था। डेरा नवाब साहिब पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौके से मुलजिम मकसूद को हिरासत में लेकर मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जड़ावाला जामिया मस्जिद बाजार में नेशनल बैंक ट्रांसफार्मर्स के हवाले से फट गया, जबकि ट्रांसफार्मर फटने से मोटरसाइकिल और गाड़ी को आग लग गई। इससे पास खड़े 9 अफराद बुरी तरह झुलस गए हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे जोड़ावाला से हमारे ब्यूरो चीफ राजा नसीम। बैंक के बाहर लगा हुआ ट्रांसफार्मर वापडा की नाहली और गफलत की वजह से फट गया। ट्रांसफार्मर फटने से जोरदार धमाका हुआ और साथ खड़ी गाड़ी और मोटरसाइकिलों को आग लग गई। आग लगने से 9 अफराद बुरी तरह झुलस गए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए PHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि ट्रांसफार्मर के पास खड़े अफराद और मोटरसाइकिलों को आग लग गई। एकदम से आग निकली है, आवाज आई है, सारे हम खौफजदा हो गए हैं लोग कि पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया। तो जब आगे देखा बाइकें वगैरह गाड़ी वगैरह जल गई थी, सब कुछ। ट्रांसफार्मर था थोड़ा सा लीकेज हुआ है, उसकी वजह से ये आग लगी और काफ़ी जानों का नुकसान भी हुआ है। अल्लाह पाक का ये शुक्र है कि बच गई हैं जाने, मगर वो देखने वाली नहीं थी। वापडा की टीम ने एक दिन पहले ट्रांसफार्मर तब्दील किया था जिसका ऑयल लीक हो रहा था। ये ट्रांसफार्मर फटा बहुत बुरे तरीके से
ये कल वापडा वालों ने इसको चेंज किया है। ये अक्सर जो है ना ख़राब रहता है, आए दिन जो है ना इसमें प्रॉब्लम बनी रहती है। ये वापडा वालों की गफलत है, कल ये चेंज करके गए हैं लेकिन ये आज फिर फट गया और इससे ठीक ठाक जानी नुकसान का तो पता नहीं, लेकिन 6 से 7 आदमी बड़े बुरे तरीके से झुलसे हैं। कैमरामैन इकराम मलिक के साथ राजा नसीम अकबर, 5 न्यूज़, जड़ावाला। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां पुलिस के रिवायती रवैये से तंग शहरी ने खुद को आग लगा ली है। इंसाफ के हुसूल के ये आए शहरी की डीपीओ ऑफिस में खुदसूजी की कोशिश, इस पर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खानेवाल चौधरी रिजवान से। जी चौधरी रिजवान, क्या मामला है? शहरी ने क्यों खुदसूजी की कोशिश की है? जी देखें, ये नवाही इलाके नवा शहर से तल्लक रखने वाले ये शहरी था जिसने इंसाफ ना मिलने पर गुज़श्ता कल डीपीओ ऑफिस के सामने खुद को आग लगाकर जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। जराये के मुताबिक मुतासरा शख्स का किसी से तनाज़ा चल रहा था, जिसके लिए मुतलका थाने के कई चक्कर लगाने के बाद डीपीओ ऑफिस भी चक्कर लगाता रहा, जहां सुनवाई ना होने पर खुद सोजी करके जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। ताहम रेस्क्यू 1112 से मुतासरा शख्स को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से हालत सीरियस होने पर निश्चित अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। दूसरी जानब खुद को आग लगाने पर मुतासरा शख्स को पुलिस की जानब से फौरन इंसाफ मिल गया। थाना सदर पुलिस ने मुतासरा शख्स की वालदा की मदईयत में मुकदमा दर्ज करके मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक डीपीओ खानेवाल रोजाना की बुनियाद पर आने वाले साइलिन की मसाइल सुनकर उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। पाकपतन थाना सदर पुलिस ने सड़कों पर नाका लगाकर डकैती राहजनी की वारदातें करने वाले 6 डाकुओं को गिरफ्तार करके 10 लाख मालियती माल मसरूका बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद चदड़ की सरबराही में थाना सदर पुलिस ने जिले भर की सड़कों पर नाका लगाकर डकैती और राहजनी की वारदातें करने वाले 6 डाकुओं को गिरफ्तार करके मुल्जिमान से 10 लाख मालियती माल मसरूका, जिसमें 4 मोटरसाइकिलें, 10 मोबाइल और नकदी बरामद कर लिया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान पुलिस से 10 वारदातों में मतलूब थे। पुलिस ने मुल्जिमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला जदीद असलहा भी बरामद कर लिया है। और सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली की ज़ेर सदारत इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने तमाम नालों और ड्रेनेज सिस्टम्स की बरवक्त सफाई यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है, ताकि बारिशों के दौरान किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटा जा सके। आवारा कुत्तों के खिलाफ जारी मुहिम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसमें मजीद बेहतरी की भी हिदायत दे दी गई, जबकि साफ पानी के प्रोग्राम के तहत फिल्ट्रेशन प्लांट सिर्फ सरकारी अराजी पर लगाने का फैसला किया गया, ताकि उनकी मौसर निगरानी और देखभाल मुमकिन हो सके। तजावुज़ात के खात्मे के लिए मुतालिका महकमों को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई तेज करने की भी हिदायत दे दी गई है, जबकि अहम शाहराहों पर ट्रैफिक में रुकावट बनने वाले तमाम गैर कानूनी स्टॉल्स और रेडियां फौरी तौर पर हटाने के अहकाम जारी कर दिए गए। उधर खानेवाल हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टर्स हजरात भी अपने मनमाने किराए वसूल करने लगे हैं। जिला इंतजामिया का कोई भी ऑफिसर किराएनामे चेक करने के लिए फील्ड में मौजूद नहीं है, जबकि मुसाफिर हजरात खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात जानते हैं आमिर नसीर से। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होते ही खानेवाल में भी ट्रांसपोर्टर हज़ार अपने मन माने किराए वसूल कर रहे हैं। जानते हैं, जी भाई बताइएगा, आप मुल्तान से खानेवाल का सफर किया, कितना किराया आपके लिए, क्या करना चाहिए? 200 रुपये किराया लिया गया, पहले किराए से ज्यादा इजाफा हो चुका है। क्या करें, हम 2 वक्त का खाना कैसे पूरा करें, आने जाने के किराए पूरे करें। हम ये बहुत परेशान है। हम आजम से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो हमसे पेट्रोल में कमी की जाए और हमारे को सफर को अच्छा किया। जी, आपने मुसाफिर की बात सुनी है। मुसाफिर का ये कहना था कि हमारा हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा है कि हमारे किराए में कमी की जाए, ताकि हम सफर करने में मजीद आसानी पैदा हो। एक और मुसाफिर मौजूद है जो खानेवाल से मुल्तान की तरफ जा रहा है, इनसे जानता है। जी भाई बताएगा, आप रोजाना सफर करते हैं, कितना किराया आपसे ले रहे हैं? जी भाई, मैं मुल्तान जा रहा हूँ, तो जैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो किरायों में भी ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट हज़रात ने किराए की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा किया हुआ है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में भी कमी करें, और ये जो ट्रांसपोर्ट हज़रात ने किराया बहुत अपने मनमाने लगाए हुए हैं, इनके ऊपर भी एक्शन लें।
दुनिया मुसाफिर की इसका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतें क्या बढ़ाई हैं, ट्रांसपोर्टर अपने मन माने किराए वसूल कर रहे हैं। जिला इंतजामिया का कोई भी ऑफिसर किराए नामे चेक करने के लिए नहीं आता था कि हमारा हुकूमत का मुतालबा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की जाए ताकि मुसाफिरों को सफर करने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी शकरगढ़ और उसके गिरदुनवाह में गुज़श्ता रोज़ से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। अब्र रहमत बरसने से जहां मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है, वहीं पर शहरियों की मुश्किलात भी इजाफे के साथ बढ़ती जा रही हैं। नशीबी इलाके ज़ेर आब आने से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है। मज़ीद नुमाइंदा तहसील रिपोर्टर हाफिज़ ज़ाहिर से जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात से मानसून की बहार का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। निशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिनमें शकरगढ़ चौक, नूरकोट, गमटाला महकमा गैपको की जानब से ये मैसेज है कि लोहे की जो चीज़ें हैं, अशिया जो हैं और दीवारें जो हैं, इनको हाथ लगाने से ग्रेज किया जाए। हमारी बात महकमा मौसमियात से हुई तो उनका कहना ये है कि 2-4 दिन से ये बहार का जो सिलसिला है ये वक्फे से जारी रहेगा। जी और डिप्टी कमिश्नर मेटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख ने ज़िला मेटियारी, हाला और सईदाबाद के इलाकों में वाक़ SM बंद के मुख्तलिफ कमज़ोर मकामात का दौरा किया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सैलाब इमरजेंसी 2025 के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं और SM बंद के कमज़ोर मकामात पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। डिप्टी कमिश्नर मेटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख ने कहा कि सैलाब इमरजेंसी के पेश नज़र जबकि ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और SM बंद की कमज़ोर मकामात पर कड़ी नज़र रखी गई है ताकि किसी भी मुमकिन ख़तरे से बर वक्त निपटा जा सके। दौरे के मौके पर एक्सिन इरीगेशन हाला डिवीज़न P सलाहुद्दीन कुरैशी ने SM बंद की तकनीकी सूरत हाल और महकमा आपाशी की जानिब से पानी की बढ़ती सतह के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद कहा है कि ज़िला इंतज़ामिया, महकमा आपाशी और दीगर मुताल्लिक़ इदारे आपस में मुकम्मल राब्ते और हम आहंगी के साथ सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं ताकि आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। DPO ननकाना साहिब सैयद नदीम अब्बास की हिदायत पर थाना सैयद वाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान के कब्जे से 2.5 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद कर ली गई। मुल्जिमान एहसान उर्फ काली और अब्बास उर्फ चमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DPO ननकाना सैयद नदीम अब्बास ने कहा है कि मुआशरे में नशे का नासूर फैलाने वाले नाकाबिल माफ़ी हैं। हुकूमत पंजाब की ड्रग फ्री मुहिम के तहत भरपूर कार्रवाइयाँ दिन रात जारी हैं। DPO ननकाना सैयद नदीम अब्बास की हिदायत पर थाना सिटी सांगला हिल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान से 2 मोटरसाइकिल और नकदी बरामद कर ली गई हैं। DPO नारोवाल की सरबराही में पुलिस ने गुज़श्ता 48 घंटों में समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 9 बदनाम ज़माना मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है।